Hello students, myself Tripti, faculty of English at Resonance PCCP. Today we are going to start with our supplementary reader book, and here I am with the first chapter of your book, that is chapter number 1, A Triumph of Surgery. Okay, so in this chapter first of all let's see कि हम देखने क्या वाले हैं, क्या पढ़ेंगे इसमें. Introduction to the chapter is, there is a small like a dog, a pet dog we'll say, Tricky, who's a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. So basically this dog, ये इतना ज़्यादा ओवरफेड कर दिया जाता है, इसको इतना ज़्यादा खिलाया जाता है कि अल्टीमेटली ही नीड्स सम रिड्रेसल, सम क्योर. इसको ओवरफेडनेस की वजह से ये बहुत ज़्यादा इल हो जाता है, बीमार हो जाता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ. Does he perform an operation? Does the dog recover? So when this chapter is basically based on 3 characters. It's this dog Tricky, his mistress Miss Pumphrey, and the writer himself, who's the narrator of the story, Mr. Harriet. So basically Mr. Harriet is a surgeon who takes care of the pets and all. So when this Mrs. Pumphrey takes her dog Tricky to the surgeon, what does he do? How does he cure that dog? तो हम इस पूरे चैप्टर में इस चीज का इंट्रोडक्शन देखेंगे, पूरा नॉट ओनली इंट्रोडक्शन बट एंटायर एक्सप्लेनेशन देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 3 क्वेश्चंस at the beginning of the chapter. Why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? So Pumphrey is actually the mistress of Tricky. ये Tricky की mistress हैं जो उसका ध्यान रखती हैं. What does she do to help him? वो क्या करती हैं? Is she wise in this? क्या वो समझदारी से काम लेती हैं? जो वो कर रही हैं क्या वो सही है? And who does I refer to in the entire story? I किसके लिए यूज किया गया है? Okay. So I was really worried about Tricky this time. So here this I stands for Mr. Harriet, who is the narrator himself, और वो खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं जब वो ट्रिकी और उसकी जो मिस्ट्रेस हैं मिस पम्फ्री उनसे मिले. So I was really worried about Tricky this time. मैं काफ़ी ज़्यादा वरी हो गया था, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था ट्रिकी की हालत देखकर. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. तो ये randomly किसी street से जा रहे थे and there he saw that this Tricky and his mistress, they were walking near the street. So he was like, he pulled up his car, that means he stopped his car there when he saw the pair, and then he went forward to speak to them. And he says that I was shocked at his appearance. Appearance is his looks. वो उनके ट्रिकी के फीचर्स को देखकर काफी शॉक्ड हो गए थे. क्यों? Because he had become hugely fat. वो बहुत ज़्यादा फैट हो गया था, मोटा हो गया था, like a blotted sausage with leg at each corner. So blotted is something that is swelled up. बहुत ज़्यादा swollen sausage जैसा लग रहा था, और ऐसा sausage बस जिसके साइड में हमने 4 corners पर हमने बस legs लगा दिए हों और वो sausage अपने आप चलने लगा हो. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. तो यहाँ पर जो नरेटर है वो बताते हैं कि जब मैंने उसको देखा तो उसकी eyes एकदम bloodshot, that means he was like red, and rheumy is watery. उसकी eyes बहुत watery हो गई थी, and उसका जो tongue था that was lolling from his jaws. वो अपना tongue बाहर निकाल के चल रहा था. Mrs. Pumphrey had hastened to explain. Mrs. Pumphrey बहुत ज़्यादा उतावली थी उसको समझाने के लिए मिस्टर हैरियट को कि क्या हो रहा है. He was so listless, means inactive. वो बिल्कुल भी चल नहीं रहा था मिस्टर हैरियट. He seemed to have no energy. ऐसा लग रहा था कि उसमें एनर्जी ही नहीं है कोई काम करने की. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil. So here Mrs. Pumphrey she tries to explain कि इतना blotted sausage जैसा इतना fat क्यों दिख रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि मतलब ट्रिकी बहुत malnourished था,
उसको एनर्जी नहीं मिल रहा था, उसको ढंग से खाना नहीं मिल रहा था, तो शी वॉज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन, वो खुद को मतलब कवर कर रही थी कि मुझे ऐसा लगा कि ट्रिकी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, तो मुझे उसे ज़्यादा खाना देना चाहिए, और इसी वजह से मैं उसे मॉल्ट और कॉड लिवर ऑयल दे रही थी इतने टाइम से. यू हैव टू रिमेंबर दिस, मॉल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट. और रात को उसको एक बोल ऑफ हॉर्लिक्स देती थी ताकि वो आराम से पेट भर के सो पाए. नथिंग मच रियली, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं देती थी. और ये वो कब देती थी? मील्स के बीच में, सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स. मील्स तो वो खाता ही था, उसके बीच बीच में उसको ये सब खाना मिलता था. एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. तो मिस्टर हैरियट पूछते हैं क्या तुमने इसका मीठा खाना बंद किया? ओ आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने थोड़ा टाइम तो किया था, बट ही सीम्ड सो वीक आई हैड टू रेलेंट. मतलब मुझे ये इतना ज्यादा वीक लग रहा था कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई फिर इसको देने से. सो आई हैड टू पुश बैक एंड आई हैड टू फीड हिम दैट स्वीट थिंग्स अगेन. ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स. सो तो ये मिसेस पम्फरी जो थी वो बहुत बिगाड़ के रखा हुआ था इन्होंने अपने डॉग को, ट्रिकी को, एंड देयरफॉर ही वाज like way too far greedy. He wanted to eat these foods, the mal, the cod liver oil, also the chocolates, the cream cakes, so everything that made him like look like a blotted sausage. I can't bear to refuse him, और मैं इसको refuse नहीं कर सकती डॉक्टर. I looked down at the little dog, again at the little dog. So Mr. Harriet जो हैं ये बोलते हैं कि मैंने ये सब सुनने के बाद फिर से उस बेचारे डॉग की जो हालत है वो फिर से देखी. Now that was the trouble. Tricky's only fault was greed. तो यहाँ पर मिस्टर हैरियट समझ जाते हैं, क्योंकि उसको बार बार खाना मिल रहा है, क्योंकि वो बार बार कुछ ना कुछ खाता जा रहा है, तो मिस्टर हैरियट को पता चल गया कि यहीं पर ही प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है? दैट ही वॉज ग्रीडी. He had never been known to refuse food. उसको कभी भी खाना खाने के लिए मतलब वो मना ही नहीं करता था, उसको जब खाना दो he could eat it. He would tackle a meal at any hour of the day or night. उसको दिन के किसी भी टाइम पर कितना भी खाना दे दो, he won't refuse it. He would just eat it greedily. And I wondered about all the things Miss Pumphrey hadn't mentioned. So this was the all that Miss Pumphrey had already mentioned कि मैं उसे मॉल्ट देती हूँ, कॉड लिवर ऑयल देती हूँ, हॉर्लिक्स देती हूँ, चॉकलेट्स देती हूँ, क्रीम केक्स देती हूँ, ये तो उसने बता दिया. बट उन चीज़ों का क्या जो मिस पम्फरी यहाँ पर बता ही नहीं रही थी कि वो ट्रिकी को क्या खिलाती हैं इसके अलावा भी. तो आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? तो यहाँ पर जो मिस्टर हैरियट है वो पूछती है क्या आप इसको इतना खिलाने के बाद एक्सरसाइज करा रही हैं? वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी. वो थोड़ा बहुत तो मेरे साथ वॉक कर लेता है एज यू कैन सी. बट हॉटगिंस the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. So you know the favorite game for these pets, basically the dogs, they just love to catch things. Okay, you throw them a ball, you throw them a plate or something, and they are very excited about catching it or going and bringing it. तो ये जो था ये उसका फेवरेट प्ले था. तो बट ये वो किसके साथ करता था? दे हैड दिस गार्डनर नेम हॉटकिन, बट इनको एक प्रॉब्लम हो गया था. दैट वाज ही वाज सफरिंग फ्रॉम लम्बैगो लेटली. उनको लम्बैगो हो गया था. लम्बैगो इज बेसिकली योर पेन इन द लोअर बैक, a severe and acute severe back pain, so lumbago हो गया था इनके गार्डनर को जिसके साथ वो खेलता था. बट सो शी मेंशंस कि इसकी वजह से अभी हमारे पास हमारा गार्डनर आ नहीं रहा है, हॉटगिंस आ नहीं रहा है, तो उसकी वजह से ट्रिकी का जो गेम है वो अभी थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है. नो रिंग थ्रोइंग, like he is not playing. I tried to sound severe. और अभी जो आए यहाँ पर हर जगह मिस्टर हैरियट को मेंशन कर रहा है. सो मिस्टर हैरियट सेज लाइक मैं बहुत सीवियरली, बहुत सीरियसली उनको ये बात बता रहा था. नाउ आई रियली मीन दिस, मैं आपको सच में ये बता रहा हूँ. इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल. अगर आप इसका खाना कट नहीं करोगे, कम नहीं करोगे
और इसको एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करवाओगे तो ये एक्चुअल में बीमार हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाएगा. Then you must harden your heart and keep him on a very strict diet. आपको अपना दिल पक्का करना पड़ेगा. You have to harden your heart and you have to give him a strict diet. उसको जितना चाहिए और जो उसकी बॉडी के लिए ज़रूरी है सिर्फ आपको वही देना चाहिए. एक्स्ट्रा चीज़ केक्स एंड चॉकलेट्स और दिस हॉर्लिक्स ये सब उसको नहीं देना है. So Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I'm sure you are right. But this is so difficult, so very difficult. So basically, she was just wringing her like hands in the air, and she says कि मुझे पता है आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, Mr. Harriet, और मुझे पता है कि मैं ट्रिकी के साथ गलत कर रही हूँ. एंड मैं ऐसा ज़रूर करूँगी, बट ऐसा करना मतलब उसको खाना ना देना जब भी वो मेरी शक्ल देख रहा है या मैं खाना खा रही हूँ. तो डॉग्स की आदत होती है, दे कीप स्टेयरिंग एट अस अंटिल एंड अनलेस दे डोंट गेट द सेम थिंग टू ईट व्हाट वी आर ईटिंग. सो देयर शी सेज कि ये बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए मैनेज करना. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, शी सेज. She set off, head down along the road, as if determined to put the new regime to practice immediately. Regime here stands for system. So system यहाँ पर किस चीज़ का system की बात हो रहा है? यहाँ पर बात हो रही है ट्रिकी को अब बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट पर रखने की, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको खाना देने की, उसका मील फिक्स करने की कि भाई इस टाइम पर यही मिलेगा, इस टाइम पर इतना मिलेगा, इससे ज़्यादा कम कुछ भी नहीं मिलेगा. Okay, now I watched their progress with growing concern. और वो जैसे जैसे अपना हेड नीचे करके, जैसे अभी हमने पढ़ा, वो अपना हेड नीचे करके चली गई. as if she was determined to follow the new system she is going to set up for Tricky. तो यहाँ पर मिस्टर हैरियट बोलते हैं that I watched their progress. मैंने उन्हें जाते हुए देखा, but I was concerned about him. मेरे को बहुत चिंता होने लगी थी. Tricky was trotting along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and for the raincoat for the and a raincoat for the wet days. So basically यहाँ पर ट्रिकी जितना ज़्यादा पैम्पर्ड था, ट्रिकी के पास जितना चीज़ें था, यहाँ वो मेंशन करते हैं मिस्टर हैरियट. तो वो कहते हैं ही वॉज ट्रॉटिंग. ट्रॉटिंग का मतलब होता है एकदम धीरे धीरे एंड बहुत अपना बॉडी शेक करते हुए ही वॉज मूविंग. और वो कैसे जा रहा था? अपने ट्वीड कोट में. ट्वीड इज लाइक फरी एंड वीव्ड कोट. तो उसने एक वीव्ड बिल्कुल फर वाला कोट पहना हुआ था और उसके पास वो मेंशन करते हैं पूरा वार्डरोब था इन कोट्स का. कोल्ड वेदर्स के लिए अलग कोट थे उसके पास, रेन कोट अलग थे फॉर द वेट डेज मतलब रेनी डेज के लिए. ही स्ट्रगल्ड ऑन. वो बहुत स्ट्रगल कर करके चल रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एकदम बहुत फैट हो गया था, हैवी वेटेड हो गया था. तो उसका मतलब बॉडी जो है वो उसका वेट जो है उसके लेग सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे. For drooping in his harness. Harness is that string that is tied along the collar of the dog and जिसे मिस पम्फरी उसको पकड़ के चल रही थी. तो वो बहुत inactively और बहुत slowly trot करते हुए आगे बढ़ रहा था. Okay, he was drooping. Drooping is he was like not able to bear his weight along with his legs. So I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. और उसी टाइम हैरियट को पता चल गया था कि बहुत दिन नहीं बचे हैं जब मिस पम्फरी जो है वो कॉल करेंगी मिस्टर हैरियट को हेल्प के लिए. The expected call came within a few days. और जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कॉल कुछ ही दिनों में आ गई. मिसेस पम्फरी वॉज डिस्ट्रॉट. और इस टाइम पे मिस पम्फरी जो थी वो बिल्कुल ही ज़्यादा डिस्ट्रॉट हो गई थी. डिस्ट्रॉट मीन शी वॉज वी कैन से शी वॉज इन डिस्पेयर. वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थी, बहुत ज़्यादा कंसर्न थी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा था, बहुत परेशान थी वो. रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज. जो ट्रिकी को पसंद था वो भी ट्रिकी नहीं खा रहा था. एंड बिसाइड्स he had bouts of vomiting. So bouts of vomiting are there are some bouts that we have before vomiting. हमें थोड़ा सा अजीब सा लगता है, our body does not accept the food that we eat. So this bouts of vomiting ये tricky feel कर रहा था. अब ऐसा ज़्यादातर इसीलिए होता है, कभी हमें तबीयत खराब होता है तो that's a different thing, but mostly when we overeat, okay, or we eat more than what our body can digest, तब हमें bouts आने लगते हैं.
सो ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, उसको एक अच्छा सा रग मिला हुआ था और वो उस पर ही बैठता था आराम से बहुत ज्यादा, और वो पैंट करता रहता था. पैंटिंग इज हेवीली ब्रीदिंग. पैंटिंग का मतलब होता है ब्रीदिंग हेवीली. Didn't want to go for walk, उसको वॉक के लिए जाने का मन नहीं करता था. Didn't want to do anything, और उसको कुछ भी करना नहीं था. I had made my plans in advance. तो यहाँ पर जो मिस्टर हैरियट है वो बोलते हैं कि मैं ऑलरेडी प्लान्ड था. The only way was to get Tricky out of the house for a period. Period is a period of time. थोड़े टाइम के लिए उसको घर के बाहर रखना पड़ेगा और इसी की वजह से उसकी जो हैबिट्स है उसमें थोड़ा सा चेंज आ पाएगा. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. तो मिस्टर हैरियट एकदम से, क्योंकि वो जानते थे कि ट्रिकी के साथ घर पे कैसा हो रहा है, वो कितना ओवरफेड किया जा रहा है, तो ये वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसका एक ना एक दिन बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगा. एंड therefore he asked immediately, as soon as Mrs. Pumphrey said that he is showing all these symptoms of being seriously ill, उसी टाइम पर मिस्टर हैरियट जो थे वो प्लान कर चुके थे कि ये जैसे ही मुझे कॉल करेंगे आई वुड कॉल ट्रिकी टू माई हॉस्पिटल, द सर्जरी. सो ही वुड बी केप्ट फॉर अ फोर्टनाइट. फोर्टनाइट इज अ पीरियड ऑफ 15 days and 14 nights. So he will be kept under observation, as he says. The poor lady almost swooned. जो पुअर इज हियर, बेचारी लेडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुख में डूब गई, वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गई. एंड शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे. उनको ऐसा लगता था मिस पम्फरी को कि ट्रिकी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्पेयर में लाइक डिप्रेस हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा अपनी तबीयत खराब कर लेगा, इवन मर भी जाएगा अगर वो मिस पम्फरी को रोज़ नहीं देखेगा. तो जब उन्होंने बोला कि इसको फोर्टनाइट के लिए मुझे अपने पास रखना पड़ेगा तो वो काफी ज्यादा परेशान हो गई वो बात सुनकर. देन बट I took a firm line. Firm line, taking a firm line here means मैं अपने चीजों पर, मैं अपने थॉट्स पर बिल्कुल फर्म था. मैं डिटर्मिन्ड था कि ऐसा ही करना पड़ेगा, इसके बिना ट्रिकी ठीक नहीं हो पाएगा. So Tricky was very ill. Tricky बहुत ज़्यादा बीमार था and this was the only way to save him. और यही सिर्फ एक तरीका है उसको बचाने का. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Miss Pumphrey's wailing, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. तो मिस्टर हैरियट जो है ये उसके घर पे जाते हैं ट्रिकी के और उसको एक्चुअल में पिक करने जाते हैं. तो ये बोलते हैं कि यही सबसे बेस्ट तरीका था उसको बिना देरी के उसको अपने सर्जरी में लेकर आना. And followed by Miss Pumphrey's wailing, she was calling out Tricky और उसको बुला के रो रही थी. बट वो जो थे वो बहुत मार्चिंग आउट मीन्स ही वॉज जस्ट वॉकिंग विद हिज फर्म फीट. वो बहुत फर्म फीट से जा रहे थे कि वो वापस नहीं आएंगे टू द कार. और जो लिटिल डॉग था उसको रैप करा हुआ था इन्होंने एक ब्लैंकेट में. द एंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowls, lunch bowl, supper bowl. So ये सारी चीजें जो हैं ये ट्रिकी के घर से आई थी. उसका पूरा day bed, night bed and bringing his day bed, night bed, then उसके cushions जो थे उसके खेलने के लिए toys और जो भी यहाँ पर ये रबर रिंग्स वगैरह हमने इन्होंने मेंशन करी हुई है. ब्रेकफास्ट का बोल अलग था, सपर बोल अलग था, लंच बोल अलग था. रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे. मिस्टर हैरियट को पता था कि ये इतना सारा सामान कौन लेकर जाएगा अपने साथ, तो उनको पता था कि ये सब सामान तो मैं लेकर नहीं जा रहा हूं. तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बस ड्राइव्ड अवे, वो लेकर चले गए ट्रिकी को. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. उसने मतलब जो भी ट्रिकी का रूम था वो सारे ये देख रहे थे मिस्टर हैरियट कि वो उसके सारे कोट्स निकाल रही हैं, उसके लिए बोल्स निकाल रही हैं, उसके लिए रबर रिंग्स निकाल रही हैं खेलने की, उसके बेड सेट कर रही हैं कि वो दिन में कहाँ सोएगा, रात में कहाँ सोएगा. और he saw all this, but he looked in the mirror before I turned the corner of the drive.
एवरीबडी वॉज इन टीयर्स. मतलब जितनी भी मेड्स थी घर में, जितने भी सर्वेंट्स थे घर में, वो सब बहुत दुखी थे ट्रिकी के जाने से, बिकॉज दिस पम्फरी, मिस पम्फरी, शी वॉज अ वेरी रिच लेडी. ओके, शी यूज टू लिव अ वेरी लग्जरियस लाइफ एंड सेम शी वॉज विलिंग टू गिव टू ट्रिकी. इसीलिए तो इतना सारा सामान ट्रिकी का अकेले का था, इतने सारे कोट्स थे उसके लिए, दिन का जो बोल था खाना खाने का, इवनिंग का जो सपर बोल था वो अलग था. तो ये सारी चीजें जो थी ये मिस्टर हैरियट को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी कि इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए किसी भी, भले ही वो पेट है, भले ही शी वॉज केयरिंग फॉर हर फॉर दिस ट्रिकी, बट इतना नहीं होना चाहिए. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on my seat by my side. तो ये यहाँ पर ट्रिकी की हालत को बताते हैं कि मैं जब जा रहा था रास्ते में तो मैंने वो देखा कि मेरे साइड में एक पथेटिक इज लाइक बहुत ही ज़्यादा बेकार सा लिटिल एनिमल जो है, वो एक्चुअली एनिमल की गलती नहीं है, जितना आप उसको फीड करो वो खाता रहता है. तो मिस पम्फरी ने उसकी आदत बहुत ज़्यादा बिगाड़ दी थी. And he was gasping, he was like breathing heavily, and he was sitting on the side of the like on the side seat. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. ये बोलते हैं कि मैंने जब उसका सर पे पैट किया, उसको थोड़ा सा प्यार करने की कोशिश किया, तो ट्रिकी जो था उसने थोड़ा सा ब्रेव एफर्ट करे. ब्रेव एफर्ट का मतलब उसने अपनी बॉडी को थोड़ा सा बोला कि हिलो, और फिर उसने अपना टेल वैग किया, थोड़ा सा हिलाया. Poor old lad. Lad means boy. So ये बोलते हैं बेचारा लड़का. You haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. तुम्हारे अंदर you don't have a kick का मतलब है तुम कुछ करने के लायक नहीं हो अभी, but मुझे पता है कि तुम्हारा इलाज क्या है और मैं वो इलाज करूँगा. So अच्छा, अभी तक हमने पता कर लिया who was I, जो हमने फर्स्ट पढ़ा था, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े थे, 3 क्वेश्चंस. Why was Miss Pumphrey worried about Tricky? मिस पम्फरी जो है वो ट्रिकी के लिए इतनी परेशान क्यों है? What does she do? तो वो सबसे पहले परेशान इसलिए थी क्योंकि वो कुछ खा नहीं रहा था एंड ही वॉज हैविंग बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. सेकेंड, वो क्या करती हैं उसकी हेल्प करने के लिए, जब वो सोचती हैं पहले कि वो malnourished है, उसमें खाने एनर्जी नहीं है, तो वो उसे और खाना देती हैं. Was that wise? Of course not. Then who does I refer to in the story? I कौन है इस स्टोरी में? So I refers to Mr. Harriet. Now next we are going to read and find out, is the narrator as rich as Tricky's mistress? क्या जो narrator है, that means Mr. Harriet जो है, क्या वो ट्रिकी की मिस्ट्रेस मतलब मिस पम्फरी जितने ही रिच हैं, क्या उतने ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ लीड करते हैं? How does he treat the dog? वो डॉग को कैसे ट्रीट करते हैं? Why is he tempted to keep Tricky on a permanent guest? वो क्यों ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बनाकर अपने ही जहाँ पर वो सर्जरी में लेकर जा रहे हैं वहाँ पर रखना चाहते हैं? Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? क्यों मिसेस पम्फरी को ऐसा लगता है कि जो डॉग उनको वापस मिला है वो एक ट्रायम्फ है, मतलब एक विक्ट्री है एक सर्जरी का? So at the surgery the household dogs surged around me. जब मिस्टर हैरियट ट्रिकी को सर्जरी में लेकर गए, मतलब जहां पर वो उसका एक्चुअल में ट्रीटमेंट करने वाले थे, तो जो हाउस होल्ड डॉग्स थे, मतलब जो बाकी अदर डॉग्स जो थे उनके सर्जरी में, वो सब सर्ज अराउंड, मीन्स ही केम एंड ही स्टार्टेड टू रोम अबाउट मिस्टर हैरियट. ट्रिकी looked down at the noisy pack with the dull eyes. ट्रिकी में क्योंकि कोई एनर्जी नहीं था, वो कोई काम नहीं कर रहा था, he was just listless, वो बहुत इनएक्टिव हो गया था, तो वो बस इस noisy pack को, पैक यहाँ पर यूज किया है वो सारे ही डॉग्स के लिए जो मिस्टर हैरियट के अराउंड घूम रहे थे. एंड व्हेन ही पुट डाउन ले मोशनलेस, और जैसे ही मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को नीचे रखा फ्लोर पर, वो बिल्कुल बिना हिले डुले वहीं पर ही बैठा रहा ऑन द कार्पेट. द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, बाकी डॉग्स ने उसको थोड़ा सा स्निफ करा, उसको स्मेल किया थोड़ी देर के लिए. डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि ये जो है ये बिना किसी काम का बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग से कोई चीज पड़ी हुई है जो हिलती डुलती नहीं है, और फिर उसको इग्नोर करके चले जाते हैं. I made a bed for him in
a warm loose box next to the one where the other dogs slept. तो यहाँ पर उसको कोई अलग सा सेपरेट बेड नहीं मिलने वाला था कि उसको सोने के लिए अलग और खाने के लिए अलग बोल मिलेगा. यहाँ पर उन्होंने एक बॉक्स बना रखा था जिसमें हर एक डॉग अपनी जगह जानता था और वहीं जाकर सोता था. तो यहाँ पर एक वार्म सा लूज सा बॉक्स था जो मिस्टर हैरियट ने प्रिपेयर कर दिया ट्रिकी के सोने के लिए, और वो वहीं था बिल्कुल जहां पर बाकी के डॉग्स सोते थे. सो कोई ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट उसको यहाँ पर मिलने नहीं वाला था. फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम. 2 दिन तक उन्होंने सिर्फ उसकी एक्टिविटीज ऑब्जर्व करी, वो क्या करता है, कितना हिलता है. गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. उसको 2 दिन तक तो बिल्कुल खाने के लिए नहीं दिया क्योंकि उसको तबियत उसका इसीलिए खराब हुआ था. ही वॉज फीलिंग इल जस्ट बिकॉज ही हैड बीन ओवरफेड. उसने ऑलरेडी बहुत सारा खा रखा था तो उसको कोई खाना नहीं दिया. गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. At the end of the second day, he started to show some interest in the surroundings. और दूसरे दिन के जब दिन खत्म होने वाला था इवनिंग में, तो उन्हें दिखा कि हाँ अब ये थोड़ा सा हिल डुल रहा है इवनिंग के टाइम पे सेकेंड डे को. एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगैन टू विम्पर when he heard the dogs in the yard. और थर्ड डे पर उसने थोड़ा सा ऐसा कोशिश करा पूरा and he started to whimper. He started to go and see what the other dogs. जैसे ही उसको आवाज आई बाकी के डॉग्स की जो यार्ड में खेल रहे थे, he also wanted to play with them. और वो excitedly अपनी जगह से थोड़ा सा हिलता है और थोड़ा सा मोशन दिखाता है. So he started whimpering. Then when I opened the door, जब मैंने डोर ओपन किया, Tricky trotted out. ट्रिकी जो है वो ऐसे ही जैसे वो पहले हिलता था बहुत बाउंसी वे में, he trotted out and was immediately engulfed by Joey the greyhound. Greyhound here is the breed of the other dog. तो उसका नाम था जो. एंड जैसे ही ट्रिकी को डोर ओपन करके दिया वो बहुत बाहर चला गया और he was engulfed. Engulfed means he was surrounded by and his friends. वो ग्रेहाउंड का पूरा जो पैक था डॉग्स का उसके साथ वो सराउंड हो गया, मतलब उन सारे डॉग्स ने ट्रिकी को घेर लिया. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम. पहले तो ट्रिकी को गोल गोल घुमाते गए, वो रोल करते रहे क्योंकि वो एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर, बहुत बाउंसी सा स्ट्रक्चर लेकर घूम रहा था ट्रिकी. तो पहले उसको थोड़ा सा रोल करा, उसके साथ खेला, उसके बाद उसको इंस्पेक्ट करा. इंस्पेक्ट का मतलब है उसको स्निफ करा, थोड़ा सा जान पहचान बढ़ाया, फ्रेंडशिप. दे मेड ट्राई टू क्रिएट अ बॉन्ड विद हिम. The dogs moved off down the garden. और फिर उसके बाद वो गार्डन में चले जाते हैं वापस से. ट्रिकी फॉलोड देम. ट्रिकी भी थोड़ी थोड़ी कोशिश करता है भाग के उनके पीछे जाने के लिए. रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट. अब क्योंकि उसकी बॉडी ब्लॉटेड हो गई थी तो ही कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, बट वो धीरे धीरे उनके पास जा रहा था रोल हो के. लेटर दैट डे, और उसी दिन के बाद में, आई वॉज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम. ये जो मिस्टर हैरियट है ये वहां पर प्रेजेंट थे फीडिंग टाइम के लिए. आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लूप द फूड इनटू द बोल्स. ट्रिस्टन में भी वहां पर जो डॉग्स की ध्यान रखता है उनका लाइक वॉशिंग द डॉग्स एंड गिविंग देम अ गुड बेथ, उनका फूड देना, उनको बेड देना, वो सब चीज़ों का ध्यान रखता था. सो ही वॉज लाइक ही स्लोप्ड द फूड, मीन्स ही पुट द फूड इन द bowls of the dogs. There was the usual headlong rush followed by the sounding of high speed eating. आपने देखा अगर डॉग्स खाते हैं तो वो बोल में जितना भी कुछ उनको मिलता है वो बहुत जल्दी खाते हैं. क्यों? क्योंकि अगर उनके आसपास और भी डॉग्स खा रहे हैं तो देयर इज अ ग्रेट कॉम्पिटिशन कि अगर मैंने जल्दी मेरा फिनिश नहीं किया तो कोई और मेरे बोल में आके खाने लग जाएगा. सो एवरी डॉग न्यू, हर डॉग को ये पता था दैट इफ ही फेल बिहाइंड, अगर वो पीछे रह गया, द अदर्स ही वॉज लाइबल टू have some competition for the last part of his meal. क्योंकि डॉग्स को ये समझदारी नहीं दे सकते हैं हम लोग कि आपको अपना ही खाना है. अगर आपने अपना खा लिया है और आपको दिख रहा है कि कोई और ने नहीं खाया है तो वो डॉग किसी और के बोल में जाकर भी बचा हुआ मील खाना चाहता है. So when they had finished, जब उन लोग ने अपना खाना खत्म किया, Tricky took a walk around the shining bowls. Tricky मतलब वो, क्योंकि डॉग्स बिल्कुल एकदम क्लीन कर देते हैं ना अपना बोल, कुछ भी छोड़ते नहीं है, सब लिक कर लेते हैं. सो ट्रिकी जो था वो वॉक करता है उन बोल्स के आसपास, शाइनिंग बोल्स, लिकिंग कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम. और उसको कहीं दिखता है कुछ तो वो 1-2 बोल्स के अंदर ऐसे ही लिक करके आगे बढ़ता है. नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट.
और फिर नेक्स्ट डे मिस्टर हैरियट कहते हैं कि क्योंकि वो अब अपना खाना खाने के बाद भी एक दो बोल्स में ऐसे लिक कर रहा था तो शायद उसको और भूख लगी थी, तो नेक्स्ट डे उसके लिए एक एक्स्ट्रा बोल हमने सर्व करवा दिया। और मतलब मिस्टर हैरियट को देखकर ये बहुत खुशी हो रही थी दैट ही वाज ट्राइंग टू जॉस्टल फॉर हिज फूड, मींस ही वाज जस्ट स्ट्रगलिंग टू गेट हिज फूड। ठीक है, वो एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो अभी तक तो बिल्कुल इनएक्टिव था, मूव ही नहीं कर रहा था, तो अब वो थोड़ा बहुत मूव कर रहा था, एक दूसरे से फाइट कर रहा था। तो मिस्टर हैरियट को ये देखकर खुशी थी दैट ही इज ट्राइंग टू फाइट फॉर हिज फूड, इसके बहाने वो थोड़ा सा मूव भी तो करेगा। then on उस टाइम से हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उस दिन से उसकी जो प्रोग्रेस थी अब सही होने की, बिल्कुल परफेक्ट शेप में आने की, वो रैपिड थी, मतलब जल्दी जल्दी हो रहा था। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। उसका क्योर बिल्कुल भी मेडिसिन नहीं थी, उसका क्योर कोई इंजेक्शन नहीं था, उसका क्योर था सिर्फ उसको एक्टिविटी करवानी है ज्यादा से ज्यादा। तो देयर वाज नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, बट वो सारा दिन बस बाकी डॉग्स के साथ ही घूमता रहता था, भागता रहता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज, और वो जैसे एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्ले कर रहे हैं, उन सब चीज़ों में वो भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता था। और ये चीज़ देखकर मिस्टर हैरियट को उसके इम्प्रूवमेंट का काफ़ी खुशी था। He discovered the joys of being bowled over, उसने नए नए खुशियां देखी यहाँ पर, जैसे बीइंग बोल्ड ओवर, उसको बॉल डाली गई, वो पकड़ के लाता था। देन ही ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, वो लॉन्ग हीप्स मारता था, जंप्स मारता था, लोगों के बीच में स्क्वैश होता था। और लोगों के इन द सेंस जो डॉग का पैक था वहां पर, जो आपस में खेलते रहते थे, वो एक दूसरे को पुश करते थे, एक दूसरे के साथ खेलते थे। तो इस चीज का बहुत खुशी अब जो था ट्रिकी को मिल रहा था, जो वो घर पे नहीं करता था। घर पे यूज्ड टू जस्ट ईट एंड सिट ऑन द रग वेरी पीसफुली। So he became an accepted member of the gang, और अब थोड़े ही दिनों में वो एकदम अच्छा सा मेंबर ऑफ फ्रेंड बन गया था उस गैंग का। An unlikely silky little object among the shaggy crew. So बाकी के जो डॉग्स है वो काफी they are called the shaggy crew, क्यों? क्योंकि वो उनको बहुत आदत था एक दूसरे से लड़ने का, एक दूसरे को पुश करके आगे बढ़ने का। तो मतलब इस एक्टिव क्रू के बीच में अब ये जो सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये जो लाइन बोली है सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, ये ट्रिकी के लिए यूज किया है और अब एक्सेप्ट कर लिया था उस गैंग ने ट्रिकी को। फाइटिंग like a tiger for his share at the meal times and hunting rats in the old hen house at night. तो अब ट्रिकी मतलब पूरे मजे ले रहा था, जो उसने आज तक अपने मिस पम्फरी के घर पे, अपने घर पे नहीं किया, वो यहाँ पर हर चीज करता था। वो एक टाइगर की तरह लड़ता भी था मील टाइम्स पर कि मेरा ही मील है या किसी का बचा है तो उससे भी वो उसका शेयर लेना चाहता था। और हैट्स की मतलब हंटिंग करता था हेन हाउस में इवनिंग या नाइट के टाइम पर। He had never had such a time in his life. उसने कभी भी इतना अच्छा टाइम अपने घर में नहीं बिताया था। All the while, पूरा टाइम Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for latest bulletins. और मिसेस पम्फरी जो थी वो काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि वो सिर्फ ट्रिकी को ही सब कुछ मानती थी अपना, और वो काफी एंग्शियस थी उसके मतलब ये सब एक्टिविटीज जानने के बारे में, और वो डजन टाइम्स कॉल करती थी। मतलब वो हर दिन कम से भी कम फोन मतलब 12 बार फोन करके परेशान कर देती थी फॉर लेटेस्ट बुलेटिन्स, मतलब उसकी अपडेट्स जानने के लिए। आई डॉज द क्वेश्चन, वो उसके क्वेश्चन को डॉज करना मतलब टाल देना, वो उनके क्वेश्चन को टाल देता था। वेदर ही इज क्वेश्चन, अगर उसके क्वेश्चन उसको रेगुलरली मिल रहे हैं और चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या उसने सही कोट पहना है वेदर के अकॉर्डिंग। और बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वेस्टिंग रैपिडली। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं ये जो क्वेश्चंस वो मेरे से पूछती थी ना कि उसका क्वेश्चन आपने दिया कि नहीं, आपने उसका जो ये छोटा सा लिटिल फेलो जो है यहाँ पर क्या उसने कोट वेदर के अकॉर्डिंग पहना है कि नहीं पहना है, मैं इन सारे क्वेश्चन को डॉज कर देता था, मतलब इनको अवॉइड कर देता था। मैं उन्हें बस इतना बता देता था कि अब उसकी जो हालत है वो काफी ज्यादा स्पीडली या इट्स विद अ पेस, इट्स बहुत ज्यादा बेटर हो रही है पहले से, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है उसकी कंडीशन में। अब वो पहले जितना बिल्कुल बैठे रहना एंड एक ओबीस की तरह वो बस एक जगह बैठा रहता था, अब ऐसा नहीं है। अब ही गोज टू प्ले एंड ही हैड ऑल द फन ही कुड। नाउ द वर्ड
Colvax King seemed to do something to Miss Pumphrey. She started to bring around fresh eggs. अब क्योंकि उन्हें पता चला कि हाँ अब वो थोड़ा बेटर हो रहा है, तो अब उसके लिए रोज रोज फ्रेश एग्स भेजे जाते थे, 2 डजन्स एट 2 डजन्स एट अ टाइम. एक बार में 2 लाइक अ डजन इंक्लूड्स 12, तो एक बार में 24, 2 डजन इज 24 एग्स एक बार में आते थे उसके लिए, टू बिल्ड अप हिज स्ट्रेंथ, उसको स्ट्रेंथ और देने के लिए. फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each for a breakfast. और जो भी ट्रिकी के लिए आता था वो ये सब खा लेते थे. मिस्टर हैरियट और उनके जो पार्टनर्स थे, उनका जो स्टाफ था, वो सब कंज्यूम कर रहे थे. बट वेन द बॉटल ऑफ वाइन बिगैन टू अराइव, और जब बाद में वाइन की बॉटल आने लगी तो जो द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगैन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड. अब उन्हें पता चला कि ट्रिकी को एक्चुअल में क्या क्या दिया जाता था. अब उन्हें पूरी सिचुएशन का अंदाजा होने लगा. It was to enrich Tricky's blood. और वो क्यों दिया जाता था? ताकि ट्रिकी का जो ब्लड है वो काफी एनरिच हो सके, उसमें जितने भी मिनरल्स रिक्वायर्ड हैं वो सब उसको वाइन से मिले. लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील. और जो ये वाइन आती थी, ये कैसे मिस्टर हैरियट लेते थे? ये लोग जब अपना दिन का लंच वगैरह, मील वगैरह लेते थे, तो उसमें पहले लंच करने से पहले एक ग्लास ले लेते थे और कुछ ग्लासेस, कुछ सिप्स जो है ये खाना खाते खाते लेते थे. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on the Tricky's constitution. और जब सबसे ज्यादा मजा तब आया इन्हें जब एक ब्रांडी आने लगी ट्रिकी के लिए. For a few nights, the fine spirit was rolled over, inhaled. Fine spirit यहाँ पर ब्रांडी को ही बोला है कि भाई कुछ दिनों तक तो ये जो ब्रांडी है ये काफी ज्यादा रोल हुई. रोल का मतलब ये लोग टेबल पे बैठ के खाना खाते होंगे, तो एक दूसरे को बॉटल पास करते रहते थे. इनहेल्ड, इसको पिया जाता था. एंड रेवरेंटली ड्रंक, और बहुत मजे से आराम आराम से इसको पीते थे. दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग with extra eggs in the morning. इनके जो डेज थे वो डीप कंटेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे निकल रहे थे, क्योंकि इनको रोज़ मॉर्निंग में एक्स्ट्रा एग्स खाने को मिलते थे. इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, दिन में वाइन पीने को मिलती थी तो बिल्कुल अच्छा सा दिन निकलता था. एंड फिनिशिंग लग्जरियसली अराउंड द फायर विद अ ब्रांडी, और वो आराम से फायर के अराउंड बैठ के, मतलब जितना भी चीज़ें आती थी ट्रिकी के लिए वो सब ये लोग कंज्यूम कर रहे थे. सो देयर डेज वर ऑफ डीप कंटेंट. इसका मतलब ये है कि इनके दिन जो थे वो ट्रिकी जब वहां पर था तब बहुत ही ज्यादा अच्छे निकल रहे थे. It was a temptation to keep Tricky as on a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that her little dog had recovered and was awaiting the collection. तो पहले तो टेम्पटेशन था मिस्टर हैरियट के लिए कि ट्रिकी को रखूं, रोज एग्स भी आते हैं उसके लिए, ब्रांडी भी आती है, वाइन भी आती है, तो मजा आता है बहुत. लेकिन फिर मिस पम्फरी इतना परेशान हो रही थी, बार बार कॉल करके पूछ रही थी, तो इनको ऐसा लगा कि इनको भी ट्रिकी को भेज देना चाहिए. तो उन्होंने कॉल करके बोला कि आपका डॉग जो है वो रिकवर हो गया है और अब आप उसको आके कलेक्ट कर लीजिए. within minutes, कुछ ही मिनट्स में about 30 feet of gleaming black metal यहाँ पर मिस पम्फरी की कार को बोला गया है. सो एक बहुत लंबी सी 30 फीट लंबी कार आती है, ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, और ये सर्जरी के बाहर आके खड़ी होती है. The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Miss Pumphrey almost lost in the interior. तो मिस पम्फरी जो थी वो अंदर बैठी थी और बाहर से शॉफर इज अ वेल सूटेड एकदम सूटेड अप जो ड्राइवर होते हैं उनको बोला जाता है, वो आते हैं और मिस पम्फरी का गेट को ओपन करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट जो कार का इंटीरियर है उसमें छुपी हुई थी, दिख नहीं रही थी. Her hands were tightly clasped in front of her. वो अपने हाथों को ऐसे क्लैप्स करके बैठी थी. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. मुझे सच सच बताइए. Is he really better? क्या वो सच में ठीक है? Yes, he is fine. तो मिस्टर हैरियट कहते हैं हाँ वो ठीक है. There is no need for you to get out of the car. I'll go and fetch him. आपको बाहर आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप बैठिए कार में जाकर और मैं उसको ले आऊंगा. I'll catch him. I walked through the house into the garden. मैं भाग के गया और गार्डन में उसको लेकर आया, मतलब गार्डन से. A mass of dogs were hurtling around and round the lawn and there in their midst is in their
मिडिल, उनके बीच में बहुत गैंग ऑफ डॉग्स था जो वहां पर हर्टल कर रहा था, भाग रहा था, दौड़ रहा था राउंड एंड राउंड लॉन में, और उनके बीच में ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेविंग, उनके बीच में ईयर्स हिलाता हुआ और टेल वैग करता हुआ was the little golden figure of Tricky. वहां पर ट्रिकी बैठा हुआ था. In 2 weeks he had been transformed to a lithe, hard muscled animal. और अब वो एकदम फर्म और हार्ड मसल्ड, एकदम स्ट्रॉन्ग बिल्डअप वाला एनिमल बन चुका था. He was keeping up well with the pack, और वो पैक से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहता था. Stretching out in his great bounds, वो जितना लीप मार सकता था उसमें पूरा स्ट्रेच कर लेता था. His chest almost brushing the ground, अब क्योंकि उसके फर ज्यादा थे और वो थोड़ा सा थिक भी था तो उसके जो फर थे वो ग्राउंड को टच करते थे. I carried him back along the passage, मैं उसे उठाकर पैसेज में से लेकर गया to the front of the house, जहां पर शॉफर जो है वो मिस पम्फ्री की कार लेके खड़ा हुआ था. The chauffeur was still holding the car door open, शॉफर ने अभी भी कार का डोर ओपन किया हुआ था. And when Tricky saw his mistress, और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, he took off from my arms, वो सडनली जंप करके जाता है in a tremendous leap, और वो जोर से जंप करके he sailed into Miss Pumphrey's lap, वो कूद कर मिसेस पम्फ्री की लैप में चला जाता है. She gave a startled, वो अचानक से शॉक हो जाती हैं. Oh, and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. वो थोड़ा सा बाक करता है, गुस्सा करता है कि आप मुझे यहाँ छोड़ के गई, और फिर उसका फेस लिक करके करने लगता है. तो उसको थोड़ा सा डिफेंड करना पड़ा, लाइक मिस पम्फ्री को अपने आप को बचाना पड़ा. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, cushions, coats and bowls. तो ये जितनी भी चीजें उसकी घर से आई थी, बेड्स, टॉयज, कुशन्स, कोट्स, बोल, जिसमें से none of which had been used, इनमें से कुछ भी यूज नहीं किया गया था. ये बात इंपॉर्टेंट है कि उसको नॉर्मल डॉग्स की तरह रखा गया था. ये सब वो हेल्प करते हैं शॉफर को अंदर से बाहर लेकर आने में. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. जैसे ही कार जाने लगी तो मिसेस पम्फरी जो है वो बाहर लीन करती हैं विंडो में से और देखती हैं. Tears shone in her eyes, उनकी आंखों में से आंसू बह रहे होते हैं. Her lips trembled, और वो बहुत कांपते हुए लिप से कहती हैं, Oh Mr. Harriet, she cried, how can I ever thank you? Like how will I able to thank you? आपने ट्रिकी को बिल्कुल ठीक कर दिया, and you have given a sort of new life to Tricky. This is a triumph of surgery. तो वो क्यों कहती हैं it's a triumph of surgery? Because now she had got her child back. वो जो ट्रिकी था वो उनके बच्चे से कम नहीं था उनके लिए. तो अब वो इतना खुश हो जाती हैं मिस्टर हैरियट के परफॉर्मेंस से कि उन्होंने कितना परफेक्ट कर दिया ट्रिकी को. वो कहती हैं ये सच में एक विक्ट्री है, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगा था कि ट्रिकी जो है वो सर्वाइव कर पाएगा उस हालत में जिस हालत में वो घर से आया था, और उस हालत, और ये भी सोचा था उन्होंने कि वो मेरे को बिना देखे मर जाएगा. बट दिस वॉज एक्चुअली अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, अ विक्ट्री ओवर द surgery of Tricky. Okay, so this was the entire chapter, a detailed explanation of the chapter. Now let us see the questions that are asked. Okay, the writer of this chapter are James Harriet. So I जहां पर भी आ रहा है वहां पे नरेटर जो है जेम्स हैरियट, उन्होंने खुद वो बात बोली है. Now what kind of a person do you think the narrator, a veterinary surgeon is? कैसे पर्सन है नरेटर? Would you say he is tactful as well as full of common sense? क्योंकि अगर ये कॉमन सेंस से काम नहीं करते, ये भी मिसेस पम्फरी की तरह बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते और उसको अच्छे बेड्स, अच्छे कुशन्स देते, तो क्या कभी ट्रिकी मूव करता? क्या वो इस लायक बनता कि वो उस पैक से लड़ पाए? नहीं बनता. इसीलिए मिस्टर हैरियट जो थे, येस ही वॉज अ सेंसिबल मैन, एंड उनको पता था कि ट्रिकी को किस चीज़ का ज़रूरत है. So he was a perfect surgeon. उनको पता था कि इसको मेडिसिन का नहीं, इसको सिर्फ और सिर्फ मूव करने, इसको मूवमेंट का प्रॉब्लम है, इसको वर्क करने का प्रॉब्लम है. So he was just working on his motions, उसके मूवमेंट पे वर्क कर रहे थे वो. Do you think Tricky was happy to go home? What do you think will happen now? ये आपके अपने बेस पर आंसर है कि आपको क्या लगता है ट्रिकी घर जाके खुश होगा? होगा भी, क्योंकि वो अपनी मिस्ट्रेस के पास है, बट थोड़ा बहुत वो मिस भी करेगा. जो प्ले वो यहाँ पर करता था वो उसको घर पे नहीं मिलेगा. एंड सेकंड क्वेश्चन टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू थिंक, कि अब आपको क्या लगता है वो फिर से बीमार हो जाएगा या अब वो अपनी जो ओवर ईटिंग वाली हैबिट है वो छोड़ देगा. नंबर 3, डू यू थिंक
दिस इज अ रियल लाइफ एपिसोड और अ मेयर फिक्शन, और इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ? आपको क्या लगता है, ये सही में ऐसा रियल लाइफ का वो है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बस ये एक फिक्शन स्टोरी है जो इमेजिनेटिव पर्पस के लिए बनाई है? ठीक है, सो ये वाला आंसर आप बताएंगे, ओके, एंड थोड़ा सा सेंसिबली सोचेंगे और फिर एक अच्छा सा आंसर फ्रेम करके आप बताएंगे, ओके. So this was all about your chapter, A Triumph of Surgery. Now in the next video we shall meet with a new chapter. Till then, you keep practicing, keep learning and keep growing, children. All the best.